Thank you very much. I think there was some issue. I think this was connected on the Bluetooth through my headphone. That is why I was not able to hear you. Okay, now it's fine. Yes. Let's start. Good evening once again, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. We will be doing, we will be doing first SD and then little part which was left over, last time of PIQ that we will be doing at the end, right? So first we start with SD. Okay. Before I start my presentation, उससे पहले SD का जो objective है, that should be very clear. It must provide maximum information to the reader about you. Objective क्या है? आपके बारे में पढ़ने वाले को सबसे ज्यादा आइडिया मिलना चाहिए आपकी SD से. अगर आपकी SD बिल्कुल जेनरिक नेचर की है and it doesn't give any specific information, then the SD is no good. आपकी कोई खास तरह की कुछ आदतें हैं, कुछ लाइफ के फेज में कुछ डिफिकल्टीज आपने फेस की, उनको आपने कैसे कोप किया, कोई घटना आपके जीवन में घटी जिसने आपके ऊपर कुछ अमिट प्रभाव छोड़ा, anything that gives the reader specific, definite information about your character, about your habits, about your personality, that is the very objective. अगर पूरी विषयवासी अगर SD है, बिल्कुल एक सैनिटाइज्ड टाइप की SD है जिसमें पढ़ने के बाद पढ़ने वाले को कोई खास इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती, then that SD is no good. So I hope that the basic part must be understood, that a reader could be your prospective employer, that reader could be your prospective marriage partner, that reader could be your prospective business partner, anyone. But he must get solid information about you. That is the very purpose of SD. Okay. Some long time back, 30-40 years back, SD was the single most important instrument in the hands of selectors in the SSB, and on the basis of SD alone, somebody could predict, yes, well, this fellow will be through. लेकिन अभी SD की इम्पोर्टेंस काफी रिड्यूस हो गई है. तो एनीवे उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी है, उसका नेगेटिव इफेक्ट भी है. रिड्यूस हो गई है इसलिए बिकॉज एनीवन एंड एवरीवन हु गोज इन फॉर द SSB, तो I think 990 out of 1000 would have taken training from some academy or the other. So most of the SDs start looking similar. Anyway, I am going to guarantee you in advance itself. अगर आप जो मेरे वाला जो ये ध्यान से सुनेंगे तो हर आपकी सबकी SD बिल्कुल यूनिक होगी. It will not be similar. Okay, but since most other the training institutions or the academies and all that, they give certain fixed ideas. तो जो SD है सबकी एक जैसी लगने लग पड़ती है. तो जो सिलेक्टर है he doesn't really know कि किसको डिस्कार्ड करें, किसको रखें. तो एनीवे इसका सिर्फ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि अगर आपकी SD एक ल्यूकवार्म टाइप है, बहुत बढ़िया नहीं है, तो भी merely on the basis of a lukewarm SD, just on that basis nobody is going to be rejected. So rejection on the basis of a lukewarm SD is very rare. But the other way around is that is very solid. A good SD, an excellent SD, can make you a marked candidate for attention, and you will be given a special attention, and you will be looked up. You will be looked at with the much greater focus, so that
it increases your chances of selection many folds. So having said that, I think I will start the my presentation. और फिर उसके बाद में बीच बीच में मैं चेंज करता रहूंगा. I will talk to you also. So let me share. Desktop and बोलो नहीं. Okay, let's see what are the essentials of a good ST. First, पढ़ने वाले को पढ़ने के बाद में ये नहीं लगना चाहिए कि ये तो tutored है. You know, this word is very often used. The tutored word is used when somebody goes to give evidence in a court of law. गवाही देने जा रहा है कचहरी में, तो कचहरी में जो प्रोसिक्यूटर है वो डंडा बजा के खूब ट्रेन करके भेजता है कि अगर ये दूसरा वकील ये पूछे तो ये बोलना, ये पूछे तो ये बोलना. तो भैया ये नहीं होना चाहिए. ये तो हमारी, if you have you must have seen by now, the very philosophy of Lux Academy is totally different. We do not want you to simulate anything. Don't try to project or don't try to show off what you are not. Maintain your natural personality, and if there are any shortcomings, well, focus on that and try to improve upon that. तो एसडी भी पढ़ने वाले को पढ़ने के बाद में ये इंप्रेशन नहीं होना चाहिए कि ये एक रटा रटाया तोता बोल रहा है. आपको सर उसको कैसे पता लगेगा? So, well, they have years and years of experience and they're highly trained. So, SD, natural SD will carry a much greater impact. Second, possibly we want people who are enthusiastic and optimistic to have an optimistic outlook towards life. एक spiritless, dispirited, lackadaisical, मरा हुआ रुड़ा हुआ, okay, वो आदमी नहीं चाहिए. And this is particularly true regarding your attitude towards failure. If minor failures here and there, they deter you so badly that you sort of leave hope or become depressed, then sorry, well, that has to be changed. So how will it reflect? आपको ये शब्द यूज नहीं करने हैं कि सर मैं बड़ा enthusiastic हूँ, मैं बड़ा optimistic हूँ and all that. No, not at all. आपका जो बाकी का लिखा हुआ है, जो बाकी का जो आप काम करेंगे, उससे the reader will be able to form his own impression. And credible, truthful होना चाहिए. Yeah, this is similar to natural. Credibility होनी चाहिए, truthful होना चाहिए. And again, as I said, सबसे पहले it should provide significant information about you to the reader, specific information about you to the reader. Okay, then वहाँ भी आपको ये ब्रीफिंग दी जाएगी. रिकमेंडेड पार्ट 15-20 मिनट मिलते हैं आपको लिखने के लिए, राइट? तो जो रिकमेंडेड पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स में बोला जाता है. पेरेंट्स ओपिनियन, टीचर्स ओपिनियन, जो लोग नौकरी पेशा हैं वो अपनी उनकी जगह पर सुपीरियर्स जो उनके बॉसेस हैं, बॉसेस का ओपिनियन लिख सकते हैं.
फ्रेंड्स का ओपिनियन, अगेन जो नौकरी पेशा है वो अपने कोलीग्स जिनके साथ में वो काम करते हैं उनका ओपिनियन भी दे सकते हैं. ओन ओपिनियन एंड डिस्क्रिप्शन. दिस SD के अंदर obviously this becomes the most important part, and the last part is weaknesses and how you plan to overcome these. Okay. As I mentioned before, the biggest danger in these SDs is that आप एक स्टीरियोटाइप तरीके से लिखना शुरू करते हैं. मैं एक एवरेज एसडी का बताता हूँ. वो इस तरह लिखता है कि सर मेरे पेरेंट्स समझते हैं कि मैं एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल बच्चा हूँ, मैं अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखता हूँ, मैं उनका घर के काम में भी हाथ बटाता हूँ, और जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड इश्यूज हैं उनमें मैं उनको एक तरह से ट्रेनिंग भी करता हूँ. माई पेरेंट्स लव मी अ लॉट एंड आई लव देम अ लॉट एंड दे हैव अ लॉट ऑफ होप फ्रॉम मी. माई टीचर्स थिंक इज वेरी रेगुलर, पंक्चुअल, और they feel he's been a very regular student and takes part in extracurricular activities also, and they feel that the boy will make a mark, boy or girl will make a mark in life. So my friends, we enjoy each other's company, we share secrets, in time we study together, in times of need we help each other. So the issue is SD of X, SD of Y, SD of Z, SD of A, B, C, they all start looking similar, right? और जब सिलेक्टर के सामने आता है वो माथा पकड़ के बैठता है कि मैं इनको क्या करूँ अब. तो as I said, I am going to make certain recommendations. अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे और फॉलो करेंगे तो ये गारंटी है कि आपकी SD बाकी सब लोगों की SD से भिन्न होगी. किसी दो लोगों की SD एक जैसी नहीं लगेगी. This is a guarantee. Okay, this is a promise. Okay, तो उसके लिए क्या करना है? I'm coming to that next. मैं आपको नीचे लिस्ट दे रहा हूं. इस लिस्ट के अंदर से आपने कम से कम 2 पॉइंट चूज करने हैं और ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट चूज करने हैं. ओके, और उसके बारे में कुछ लिखना है. तो क्या है? नंबर 1, some event in your past life, ऐसी इवेंट, ऐसी घटना जिसने उसके आपके ऊपर अमिट प्रभाव छोड़ा हो या अमिट प्रभाव नहीं भी छोड़ा हो, कुछ डिफिकल्ट फेज ऑफ योर लाइफ, और उसमें उसको आपने कैसे कोप अप किया. कहीं आप फेल हो गए, किसी में आपके नियर एंड डियर की किसी की डेथ हो गया, उस वक्त उस सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया, या किसी भी डिफिकल्ट, इट कैन बी इवन ए पॉजिटिव इवेंट आल्सो, किसी पॉजिटिव अच्छी इवेंट में आप थे तो उसमें आपका क्या रिएक्शन था, हाउ डिड यू गो अबाउट इट. ओके, तो ये तो नंबर 1. कोई डिफिकल्टी आपने कोई फेस किया, वो छोटी सी घटना हो सकती है, बहुत बड़ी घटना हो सकती है. इनफैक्ट one of the girls from Maharashtra, she had come, and in one her SD, she mentioned B.Tech के अभी she was still a student, and she was at home, and at night 2 o'clock or something like that, they get a phone call that her father, who was traveling from I think Bombay to Pune or something like that on the highway, is met with an accident and is no more. तो एक ये है कि ऐसी सिचुएशन में आप खुद ही इतना ज्यादा घबरा जाएं या आप खुद ही इतना ज्यादा डिसेबल्ड हो जाएं, ठीक है, start crying and this that. Whereas this girl, being the eldest daughter, सारा अपना पर्सनल ग्रीफ को एक तरफ रख के she
took charge of the situation, इकट्ठा किया एक दो आदमियों को और टैक्सी हायर किया, she went there to the scene of the accident and all that, you know, brought her whatever was required to be done, whatever was required to be done in that situation, she did, keeping all her personal grief aside. And you know, this indicates a lot about your willingness to face unforeseen contingencies and how you react. तो लिखना आपको 2 लाइनें हैं, आपने घटना को लंबा चौड़ा डिटेल्स करके नहीं देना, क्योंकि टोटल जो आपको टाइम मिलता है 15 मिनट मिलता है, 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा, कभी कभी 20 मिनट, 15 और 20 मिनट के बीच में आप कितना लिख सकते हो? तो लिखने तो आपने 2 सेंटेंस है, बट दैट रेफरेंस, दैट एल्यूशन इज गुड इनफ. तो उसको आपने कैसे हैंडल किया? तो नेक्स्ट, रोल मॉडल. जस्ट मैं 1 सेकंड के लिए इसको स्टॉप कर रहा हूं. आई वांट टू टॉक टू यू. टॉक, शेयर, you come back again. Yes. तो हम रोल मॉडल की बात कर रहे थे. तो आई जस्ट वांट टू आस्क यू, एनी वन ऑफ यू, एनी वॉलंटियर हु कैन टेल कि भाई हु कैन बी ए रोल मॉडल? हेलो, एनी वॉलंटियर हु कैन टेल मी बैक? Yes, sir. I Yashwant Kumar Gosha. Yes. Sir, any person जिसको मतलब it can be imaginary as well as मतलब एक ऐसा person जिसको हम अपनी life में हमेशा देखते हैं. It can be father or mother or some outer person जिसको हम जानते नहीं है but जैसे TV वगैरह में भी दिखता है. So he can be a role model. Okay, बिल्कुल. उसकी quality. बिल्कुल सही बोला आपने. कोई restriction नहीं है. It can be a person who is living. It can be person who died 1000 years back. It can be someone very close to you, your father, mother, brother, sister, cousin, uncle, friend next door, person next door. Or it could be a political hero. It could be the prime minister. It could be a sports hero. It could be, you know, even an imaginary person. Imaginary person means person non-existent, the hero of a novel, the hero of a movie. The most important part is who is your role model is not important, but उसके अंदर ऐसा क्या है जिसके कारण वो आपका रोल मॉडल है, वो है मेन चीज. उसके बारे में लिखनी 2 लाइनें. Why the person whom you choose to be your role model, why is he your role model? Again, 2 sentences, good enough. Because that indicates your value system. In fact, as you know, you must have learned many times, हम बोलते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि. जैसा आप मन में सोचते हो, that is how you view the world. One of these ways, you know, कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे, पर्सनल इंटरव्यू के दौरान, कि बताइए ये इस ग्रुप के अंदर 25-30 बच्चे हैं, who do you think is the smartest? So you will say X, Y, Z. They will say Y. You see, अगर कोई आपसे आपके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, then you think 10 times. You are very guarded. एक शब्द तोल मोल के बोलते हो कि इसका असर क्या होगा. पर जब आपको तीसरे बंदे के बारे में पूछा जाता है तो बड़ा धड़ाधड़ शुरू हो गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. पाट. But in the process, you forget in a way that when you are describing a third person, actually you are not describing the third person, you are describing yourself. And this is a standard psychological testing technique that indicates your value system. For example, अगर you say
सर देखो, is 6 feet tall, speaks fluent English, it looks very, dashing and handsome, or the other way around, very, very pretty and this thing. So that indicates a certain value system. That means maybe the superficial qualities that you value. On the contrary, if somebody says, "Okay, sir, ye to, he never loses his cool. He has got lot of knowledge. He takes, अगर जब भी उनको group task दिया जाता है, he takes everybody's views into consideration. He is able to draw the best out of everybody. He is a very good motivator, and rarely, gets upset over minor flaws or things going wrong." Well, that indicates an altogether different value system. So in the process of describing your role model, you are actually indicating your own value system. So right, तो रोल मॉडल के बारे में 2 लाइनें लिख सकते हैं. रोल मॉडल कौन है उसको लंबा चौड़ा उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं देनी, वो आपका रोल मॉडल क्यों है, दैट इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो आई एम गोइंग बैक टू दैट शेयरिंग स्क्रीन. Sir, can you repeat, sir, please? नहीं, रोल मॉडल जो है वो आपके रोल मॉडल क्यों है, दैट इज इम्पोर्टेंट. कि सो एंड सो इज माय रोल मॉडल फॉर दीज रीजंस. इन कारणों के कारण ये उनके अंदर क्वालिटीज हैं जिसके कारण वो मेरा रोल मॉडल है. ठीक है, बाकी आप अपनी इंडिविजुअल एसडी लिख के मुझे भेजेंगे, मैं आप सबको इंडिविजुअली आई गो थ्रू इट, आई टेक लॉट ऑफ पेन. इनफैक्ट मेरे को हर एक की एसडी पढ़ने में आधा पौना घंटा लगाता हूं मैं, एंड देन आई विल गिव यू सजेशंस. तो anyway, let me go back to that presentation. Okay, so we were here. So some event in your past life बोल दिया, रोल मॉडल हो गया. तीसरा, आपका जीवन के प्रति क्या नजरिया है. अगर मान लीजिए आपको कोई कोटेशन आपने पढ़ी और आपको बहुत अच्छी लगी, ठीक है, कोई, इफ यू फील दैट यू हैव ए लाइफ फिलोसफी, कोई आइडिया जो आपको बहुत अच्छा लगा, उसके बारे में एक लिख सकते हैं. आप पूछोगे सर ये बड़े बड़े शब्द हैं, ये क्या बहुत भारी भरकम शब्द हैं. नहीं, भारी भरकम शब्द नहीं है, ये बहुत सिंपल चीज है. फॉर एग्जाम्पल, मैं तो एग्जाम्पल से दे सकता हूँ. लाइफ फिलोसफी, तो लेट्स से व्हाट इज माय लाइफ फिलोसफी. माय लाइफ फिलोसफी इज वेरी सिंपल. आई फील यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी. जो सुबह आप उठते हो, रात को सोते हो, उसके दौरान आप में भी every day you may be making some 100 odd decisions, छोटा minor, very very minor decisions. So if you make those decisions wisely, उनका result outcome कुछ और होगा. If you make those decisions poorly, उनका decision और होगा. Simple things. Taking bath every day, right? और your friend का फोन आता है, जैसे आप फोन देखते हो, you say,
जब भी आता है सारा आधा घंटा लगा देता है, तो यू डोंट अटेंड, ना आप उसको कॉल बैक करते हो ना, तो इट विल हैव सम नेचुरल consequences. Every choice that you make, every action that you do, it has got its natural consequences. You cannot escape those. Well, there is a anti view. Some of you may feel कि सर ये क्या क्या बोल रहे हो, ये you are the creator of your own destiny. आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं है. You are a small fly, not even a speck of dust in the whole universe, and there are forces much bigger who control the shape of your circumstances and where you go. You cannot influence anything. There's nothing that you can do. Okay, someone of you may feel that. तो फिर भाई वो झगड़ा थोड़ी है कोई, तो वो फिर आपकी लाइफ फिलोसफी है. There is no argument in that at all. If you believe in something strongly, that becomes your life philosophy. If you believe in something opposite strongly, that becomes your life philosophy. So whatever it is. या कोई quotation पढ़ा है, तो for example, again in quotation में मैं, although it's not written by somebody, but I only feel, you know, जैसे if you take care of your todays, tomorrows will take care of themselves. And if you take care of your nows, todays will take care of themselves. So well, कोई कोटेशन आपने पढ़ा, आपको पढ़े लगा, मजा ही आ गया यार, हा हा, जिसके साथ आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है. सारी कहानी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक इज कि आपने रीडर को इंप्रेस करने के लिए नहीं लिखना, आपने वो लिखना है जो आपके सच्चे मन से आपको लगता है कि ये मैं हूं. दिस इज व्हाट आई फील, दिस इज व्हाट आई बिलीव इन. नेक्स्ट, कोई किताब पढ़ी, बहुत अच्छी लगी, लिखो एक सेंटेंस. कोई नॉवल पढ़ा, आई मीन फिक्शन, वेल यू राइट ए लाइन. कोई पिक्चर देखी आपने, वाह जी मजा ही आ गया, आहा, एंजॉय इट. और एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ मूवीज दैट यू एंजॉय, राइट वन सेंटेंस. आपके बारे में ये कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देता है रीडर को. कोई वर्क ऑफ आर्ट, कोई पेंटिंग देखा, कोई स्कल्पचर देखा, आप वाह वाह मजा ही आ गया, दूसरी दुनिया में खो गए आप. यू कैन राइट ए वर्ड अबाउट इट. कहीं घूमने फिरने गए, या घूमने फिरने गए, या घूमने फिरने को जाने के लिए आपकी चाह है, इच्छा है कि यहाँ जाऊं कभी ना कभी जिंदगी में, जरूर जाऊं. राइट ए लाइन अबाउट दैट. एक लाइन लिखेंगे उसके बारे में. और एनी अदर एक्सपीरियंस. द कैविएट इन ऑल दिस इज वंस अगेन, इनमें से 3 से ज्यादा चीजों के बारे में नहीं लिखना, बिकॉज फिर वो बहुत ज्यादा क्लटर हो जाएगा. और 2 तो होना चाहिए, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3. किस चीज को चुनना है? जिसके साथ आपकी घंटी बजती है, जिसके साथ आप अपने आप को रिलेट कर सकते हो. किसी दूसरे आदमी को इंप्रेस करने के लिए नहीं लिखना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट. Some more suggestions to make your SD attract positive notice. Excuse me, Yes, sir. yes, please. Sir, could you go just back to the previous slide? I was writing down. Could you please? Sure. Yes. हाँ, say one open offer. Anyone wants to ask any question, कोई मन में बात आती है, you can stop me. In fact, I'll prefer that rather than keep on waiting till the end. और मुझे भी लगता है कुछ इंटरेक्शन ज्यादा होगी, तो बीच में कहीं भी कुछ मन में आता है आपको, some clarification that you want to seek, please stop. Sir, I want to ask one question. Yes. Sir, as you said that we can include either 2 points and maximum 3 points from what you have Yeah. said. But इसमें means
as in SD we have to write 5 points, like what our parents' opinion about us. So in each and every part we have to include, or ये in तो whole आपका SD? अपने वाले पार्ट में आएगा ना ये तो सारा, वो तो अच्छा, पेरेंट्स सिर्फ अपने वाले पार्ट में. ये तो ये सब के सब अपने वाले पार्ट में आएंगे. Okay, sir. And whatever in that is in that parents' opinion, वो सब अपने हिसाब से लिखना है ना सर? हाँ, वो अपने हिसाब से, वो तो अलग से लिखना ही है. तो पेरेंट्स ओपिनियन, फ्रेंड्स ओपिनियन, टीचर्स ओपिनियन, और देन ऑफ कोर्स वीकनेसेस, और ये आपका अपना ओपिनियन है और आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन है, दोनों है, दोनों चीजें. ओके सर. चलिए एनीवे आगे चलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. एज ए सेड कि ये एसडी में सिर्फ एक प्रॉब्लम ये है कि जो एवरेज बच्चे, जैसे मैंने बताया, लिखते हैं माय पेरेंट्स थिंक आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल, मैं अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखता हूँ, मैं घर के काम करता हूँ, मैं बड़ा रिस्पॉन्सिबल हूँ, दे लव मी अ लॉट, माय टीचर्स थिंक आई एम वेरी रेगुलर पंक्चुअल, मैं जिंदगी में कुछ ना कुछ कर जाऊंगा, कर पाऊंगा, माय फ्रेंड्स थिंक आई एम वेरी डिपेंडेबल, मैं उनके साथ वी एंजॉय, हम इकट्ठे पढ़ते हैं, एक दूसरे के सीक्रेट के दूसरे किसी को नहीं बताते हैं, ऑल दैट. तो ये सब एसडी जो है, अगर सब एक तो एक जैसी लगती हैं, दूसरी कभी कभी लिखते लिखते कभी कभी ये भी लगने लगता है अपने आप को ही कि यार ये जितना अच्छा मैं अपने आप को दिखा रहा हूँ उसका तो मैं 10% भी नहीं हूँ, तो अच्छा जरूर से ज्यादा झूठ हो गया. सो यू मे फील ए सेंस ऑफ गिल्ट व्हाइल राइटिंग so such goody things about yourself. तो उसके लिए एक दो सजेशन है. सबसे पहला तो ये है कि यू कैन, मैं क्या हूं उसको तो जाओ भूल, बट मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं. आपने घोर तपस्या किया, भगवान साष्टांग आपके सामने प्रकट हो गए, बोला बेटा वर मांगो क्या चाहिए. तो एक तो है कि सर गाड़ी बंगला कार दिला दे, मेरी भी तू लिफ्ट करा दे. One is that kind of thing. The other kind of thing is कि ठीक है भगवान जी मैं इस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ. What are the kind of qualities of character that you wish to have in yourself? तो उसमें तो कोई झूठ की बात है नहीं कि that is your target, that is your goal, that is your aim, that is your objective. तो well, हम उसके बारे में लिख सकते हैं. The kind of person you would like to become as opposed to what you are. Number one. Number two, which is again, ये मैंने पहले भी किया. Any challenge or difficult situation faced by you and how you handled it. ये किसी जिंदगी में किसी क्लास में फेल हो गए, टीचर ने डांटा, घर वालों ने बहुत डांटा, किसी फ्रेंड के साथ, बहुत क्लोज फ्रेंड था, उसके साथ अनबन हो गई, किसी भी सिचुएशन में जिसमें you felt very bad, how did you react, how did you handle, how did you cope with that? क्या किया? आपके बारे में कुछ बताएगा. आपकी एसडी अच्छी बनेगी, आपकी एसडी नेचुरल लगेगी अपने आप. यस. हाउ डिड यू कोप विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन? ओके, वो सिचुएशन नीड नॉट बी वो भाई कोई नेशनल कैलामिटी को जाके आपने करना है. व्हाटएवर जो हमारी डे टू डे लाइफ में किसी कभी जो एज ए सेड क्लास में फेल हो गए, टीचर ने बहुत डांटा, माँ बाप ने कभी बहुत डांट दिया, ओके, 2 दिन खाना नहीं खाया, घर छोड़ के भाग गया, या व्हाटएवर, जो भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन जो आपकी आई, हाउ डिड यू कोप विद दैट? वी कैन राइट अबाउट दैट. एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपकी इच्छाएं क्या हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपकी डिजायर्स क्या हैं, आपकी पैशंस क्या हैं. ओके, इसके बारे में जरूर लिखना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर जब मैं आता हूँ, आई ऑलवेज टॉक अबाउट, गिव द एग्जांपल ऑफ वैन गॉग एंड लियोनार्डो डा विंची. आपने नाम सुना होगा लियोनार्डो डा विंची, तो गूगल में डालो. Yes, sir. Yes, sir. वो
comes, there are 10 or 15 disciplines in each one of which he excelled. He was a great sculptor, painter, mathematician, scientist, I think even a physicist, music composer. तो मेरे तो 6 उसके डिसिप्लिन याद करके आगे तो मैं भूल ही गया, बड़ी बार देखता हूँ. एनीथिंग एंड एवरीथिंग ही रियली एक्सेल्ड. तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा इंटरेस्ट, कोई भी ऐसा फील्ड, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको करने में आपको इतना मजा आता है कि आप दीन दुनिया की खबर भूल जाते हैं, उसके बारे में जरूर लिखिए, एक लाइन लिखिए बेशक. इफ you are interested in football so much or cricket so much कि रात को सोते सोते 3 बजे किसी ने उसका नाम ले दिया तो उठ के खड़े हो जाओगे. राइट अ लाइन अबाउट दैट. किसी भी ऐसा काम जिसमें आपका मन बहुत लगता है एज कंपेयर टू अदर्स, मस्ट राइट ए वर्ड अबाउट दैट. ओके. फिर आपकी लॉन्ग टर्म लाइफ में क्या इच्छाएं हैं, क्या बनने की. जस्ट राइटिंग कि मैं एक सर्विस ऑफिसर बनना चाहता हूं, मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूं, इज नॉट इनफ. इज नॉट इनफ. इनफैक्ट दैट मीन्स नथिंग. आप आर्मी ऑफिसर बनने के बाद में क्या करना चाहते हैं, या व्हाट इज योर, आपकी इच्छा क्या है, वट एवर, एनीथिंग दैट यू रियली वांट टू डू, कोई ड्रीम. And one more thing, it's very important to mention here. Anyone, this is again a very broad statement, very bland, and anyone who has a recurring dream means वो रात को सोते वाला सपना नहीं, जिसको बार बार ये ख्याल आता है कुछ करने के लिए. If you have a recurring dream over a period of time, I can assure you, you have the capability in you to achieve that dream. अगर आपके अंदर वो capability नहीं है, okay, there is no way you can get that dream repeatedly. No one, you say कि सर मुझको ड्रीम आता है, मैं I want to be a great musician, okay, I want to be a great composer, लेकिन म्यूजिक का तो उसको he is music blind, he is tone deaf kind of thing, okay. So I can assure you, वो ड्रीम उसको रिपीटेड, अगर if a person is a tone deaf, उसका बिल्कुल म्यूजिक में एप्टीट्यूड 0 है, तो हो सकता है उसको एक आध बार वो ड्रीम आया होगा, but very soon he will learn that he is not cut out for that, and he will not have that dream repeatedly. If you have a recurring dream over a period of time, that means God has given that potential to you, and you have got all the ingredients necessary in you to achieve that. तो ऐसा कोई भी आपका ड्रीम है, ऐसा कोई भी एक्टिविटी है जिसमें आपका मन लगता है. जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी में भी वर्किंग फॉर 18 hours a day. Why? Because he likes that job. Any job that you like, you can keep on doing it for hours and hours at a stretch, and you still don't feel fatigued. On the contrary, something that you hate, और वो आपको काम करना पड़ जाए तो ऐसे लगता है, आपको 10 मिनट करते हो तो लगता है ये तो दिहाड़ी बीत गई, ये तो युग बीत गया. If there is any activity in which while doing it you are so absorbed that you are completely oblivious of whatever is happening around you or whatever else is happening in the world around you, then a divine quality flows into that activity, and it is bound to get noticed sooner or later by the whole world, and you are bound to get the credit for that. Well, it's a different matter. In some cases वो है कई बार के क्रेडिट आपकी लाइफ टाइम में नहीं मिला, वो मरने के बाद मिला. Well, that's a little bit of luck is there. But anyway, the long and short of the whole story is, आपका इच्छाएं क्या है,
आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, इनके बारे में लिखना जरूर है. ओके, नेक्स्ट. Yeah. हाँ, ये लास्ट पार्ट. एनी peculiar और स्पेसिफिक हैबिट. आपकी कोई हैबिट है जो दूसरों से डिफरेंट है. जैसे एक बच्चे मेरे को 3-4 कोर्सेज पहले, देयर वाज a student, I had a very good impression about him. I felt he's a very competent material for selection. लेकिन जब वो एसडी उसकी लिख के आया तो एसडी बिल्कुल नॉर्मल सी थी, तो मुझे उससे बार बार पूछना पड़ा, क्या यार ये घड़ी घड़ी यार नोटिफिकेशन बंद करना पड़ेगा. ओके, तो उससे बातों बातों में जब उसकी एसडी के बारे में बात कर रहे थे, देन ही टोल्ड मी कि सर ही gets up at 4 a.m. every day, and this he has been doing from the time when he was 5 years old until now. तो मैंने कहा तुमने लिखा क्यों नहीं? कहा सर मैं तो सोचा कि इसमें क्या लिखने वाली बात है. Now this is a great thing. If somebody is getting up every day at 4 a.m. in the morning and is regular about it, and whatever the routine, it indicates a certain determination, certain willpower, certain resolution. तो मतलब ये तो एक एग्जांपल है. कोई भी ऐसी आदत जो नॉर्मली एक एवरेज से थोड़े भिन्न है, लिखिए उसके बारे में, एक लाइन लिखिए बस, एनफ. ओके, चलिए नेक्स्ट. लास्ट पार्ट इज वीकनेसेस, और उन वीकनेसेस को आपने कैसे दूर किया, या दूर करने के लिए क्या कोशिश कर रहे हो. The fact that a person has some weaknesses but is fully aware of those and is making efforts to overcome those is acceptable. आपके अंदर कोई कमजोरियां है, आपके अंदर कोई कमी है, उस कमी को आप रिकॉग्नाइज करते हो, उसको दूर करने के लिए कुछ हाथ पांव मार रहे हो, एक्सेप्टेबल, चलेगा चलेगा. ये सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, दे आर नॉट लुकिंग फॉर एब्सोल्यूट सेंट्स कि जिनके अंदर कोई, तो वो मिलेंगे भी नहीं, वो होगा कहाँ. Absolute सेंट में कहां से मिलेगा. ओके, तो the fact that you have a weakness and you recognize that weakness and you are taking some action to overcome that, good enough. क्या एक्सेप्टेबल नहीं है? आपके अंदर कोई कमजोरी है, सारी दुनिया को मालूम है, आपके भाई बहनों को, आपके माता पिता को, आपके फ्रेंड्स को, everyone knows about it, but you yourself are oblivious, unaware. तो भैया ये तो सिचुएशन टोटली अनएक्सेप्टेबल. तो ऐसा आदमी तो he becomes a butt of ridicule of the entire society, and obviously that is a total no. Then while writing your statement, although we always say कि सच बोलना है, लेकिन avoid making open-ended, too generalized statement कि मुझे तो जी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है. तो उसमें थोड़ा सा कैविएट दीजिए, ये दीजिए उसको, qualify that statement on occasion, at times, under provocation, ऐसा होता है. And last, which is most important, again, अगर आपके अंदर कुछ कमजोरी थी, कुछ वीकनेसेस थी, और आपने एफर्ट करके उस वीकनेस पे ऊपर काफी हद तक विजय प्राप्त कर ली, you have been able to overcome that 40%, 50%, 60%, even partially, तो उसको तो जरूर हाईलाइट कीजिए, because that actually becomes your success. That actually becomes a positive point in your favor. The ability to recognize the weakness
and the ability to take corrective action, even if it is partially successful, that also comes out in a very positive way. Right. So बस इतना ही है. Now I am just stopping sharing and I'll invite. अभी I am open to any questions. आप अपनी अपनी एसडी लिख के इंडिविजुअली मुझे स्कैन करके भेजिए. ये फोटो करके नहीं, वो मुझसे पढ़ी नहीं जाती. एंड मैंने तो आपको बार बार पूछना नहीं है. जो मेरे को भेजेगा उसको मैं विद इन 1 डे, रेयरली कभी 2 दिन भी हो सकते हैं, तो आई विल रिप्लाई पर्सनली गिविंग ऑल द डिटेल्स, मेकिंग सजेशन कि यहाँ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, इस तरह से इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, giving good feedback to the best of my capability to make your SD still better. Okay, so now now that is up to you. And now any question, any doubts that you have? Sir, I have a question, sir. Please. Sir, here we learn about the self-description, about what we think about ourselves. थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, slightly. सर, अभी हमने सीखा है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं. Yes. वो वाली चीजें हमने. What our parents think about us, what our friend think about us, colleague think about us. तो सर उसमें वही चीजें आएंगी फिर कि वे उनको लगता है, मैं दोस्तों को लगता है मैं बहुत अच्छा हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, और अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो वे मेरे को फोन करते हैं, मैं उनको बता देता हूँ, हम अच्छे से रहते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं. सर वही जनरलाइज सी चीजें आते हैं, उस चीज को कैसे यूनिक बनाया जाए? नहीं ये भाई जनरलाइज में कुछ स्पेसिफिक भी आ सकता है. बहुत सारों के पेरेंट्स ये भी, जैसे किसी मेरे को बहुत, सर मेरे पेरेंट्स सोचते हैं कि मैं बहुत खर्चीला हूँ, मैं बहुत ज्यादा खर्चा करता हूँ. मैं दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू ऑफ दोज हु आर ऑलरेडी सर्विंग इन आर्मी एंड मेनी ऑफ देम व्हाइल राइटिंग इसे कि सर दे थिंक आई ओवर स्पेंड और मैं सेविंग नहीं करता हूँ. तो मैं उनको बोला कि वो क्या सोचते हैं उसके साथ में आप अपना व्यू पॉइंट भी लिखो कि भैया, डू यू एग्री विद देम or do you think they are outdated, they are out of touch with the market and they are out of touch with the aspirations. And so there are so many, many of us, most of us, we will have some kind of differences with our parents on some issues and all that. So we can give our viewpoint also, specific viewpoint on a particular thing. But if you think they are right and you need to correct yourself, तो वो भी लिख सकते हैं कि मैं I am making my efforts to come up to their expectation. Sometimes their expectation may be unrealistic. Many parents may, they think without understanding the real potential or of their world, they think कि ये तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा. Their expectation may be unrealistic, or their expectation regarding your conduct towards them, they may also be unrealistic at times. तो आप अपना ओपिनियन मेंशन कर सकते हैं थोड़ा सा उसमें. तो जितना स्पेसिफिसिटी ज्यादा होगी उतनी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होगी आपकी एसडी की. तो वो स्पेसिफिसिटी तो आप ही डिसाइड कर सकते हो. मतलब मैं उसमें और क्या बोलूं. यस सर, गॉट इट सर. और दिस आई एम हाईलाइटिंग ओवर एंड ओवर अगेन कि कोई आपने डिफिकल्ट सिचुएशन लाइफ में फेस की है, उसको कैसे कोप अप किया आपने, वो जरूर लिखिए. लाइनें 2 ही लिखनी है क्योंकि टाइम तो 15 मिनट मिलते हैं पूरे लिखने में. तो वो भी ध्यान रखना है कि एक जो बच्चा बहुत तेज लिखता है वो 3 पेज लिख सकता है, ठीक है, और स्लो वाला तो और भी कम लिखेगा ज्यादा से ज्यादा. तो you have to manage the contents to your writing speed. अच्छा, दूसरा ऐसा भी है, बहुत कई बच्चों ने एसडी लिखा है, पौना पेज में लिख के दे दिया, 3/4 of a page. Now you know what impression does it give? The first impression is that you couldn't care less. You say sir ले लो इसकी बत्ती बना के जो करना करो. It looks as if you are disrespectful and indifferent.
if you are giving an SD in 3/4 of a page, it looks that you couldn't care less. तो वो भी नहीं होना चाहिए. तो somewhere 1.5 2 pages इतना तो होना ही चाहिए. और obviously, of course, it will also depend. It has to be commensurate with your speed. Sir, I would like to ask one thing. Please. As we say that मतलब teachers' opinions में if I will talk about my personal case, I was not so close to my teachers during my school as well as during my college. So although मतलब थोड़ी बहुत चीजें पता है what how they reacted to me, उसके basis पे I can judge that what opinions they had about me. But now as I have been मतलब 1 साल से ड्रॉप लिया हुआ है and I am preparing. So इतना इंटरेक्शन नहीं था कि मैं उनके बारे में मतलब जो उनका ओपिनियन मेरे लिए है वो प्रॉपर गेस कर पाऊँ मैं. So No, what we can do you about can write it? that way exactly. Okay, I was, a kind of not exactly backbencher, but I was not in the limelight. So my teachers did not have a very firm view, or I'm not really in a position to judge. अरे ये क्या हो गया? Sorry. तो right. तो ये कहाँ से आ गया? Yes, sorry, something happened by mistake. तो लिखिए ऐसे ही कि I was not a very prominent student, and I was a mediocre student, and my teachers did not have a very firm opinion, and I'm not aware. So ठीक है, that's good enough. कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. बाकी जो आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, क्लोज फ्रेंड्स होंगे, उनका तो ओपिनियन होगा काफी. Yes, sir. One way or the other. Your parents, of course, they will have some opinion. Yes, sir. Sir, I want to ask a question. Yeah, please. Sir, as you talked about the specific or peculiar habits, so sir, before every night before going to bed, sir, I used to check the main door and cylinder knob, tap, and wash and television switch. So, can this be considered as a habit? They can be written. You see, it is not a very, you are very safety conscious. That is all it brings out, that you are a very safety conscious person. You can write. See, मेरा तो ये कि कुछ भी हैबिट, अब फिर ये मतलब मुझे तो एक एग्जांपल देके ही तो मैं बता सकता हूँ. I can because I know myself best, so I can give my own example. Now at this age, one of my habits is कि जिस किसी गैस का, फोन का, किसी भी चीज का कोई बिल है, बिजली का, वो जैसे ही बिल रेज होता है उसी वक्त वो बिल पे होना चाहिए. So I don't wait. I may have 1 month, because that a pending bill is a source of tension for me. I don't want to take the tension at all. So the moment the bill is raised, I set up an automatic this thing. उसी वक्त the bill is paid, I get a message कि इतने amount का bill pay हो गया. I feel very happy कि ये सब झंझट से मुक्ति मिली. So this is a habit which is not that this is something very great, but this is a habit which is a little unusual. Many people will wait up to the last day. I don't. Okay? तो ये पढ़ने वाले को कुछ ना कुछ मेरे बारे में बता रहा है. It gives him some information. कोई specific information जो आपको दूसरे पढ़ने वालों को मिलती है, वो अच्छा है. Yes, sir. बिल्कुल जनरल पर्पस जो कहते हैं ना, सैनिटाइज्ड वर्जन ऑफ एसडी, जैसे अस्पतालों में आपने बिल्कुल सैनिटाइजेशन कर दिया सब कुछ ही, वो नहीं होना चाहिए. सिर्फ पॉजिटिव आ गया और बाकी कुछ भी नहीं है. doesn't matter even if something may be interpreted slightly negatively by somebody else, but then you give your own viewpoint कि ये ऐसा है. या अगर वो सचमुच में चीज आपको खुद को लगता है कि वो गलत है, तो मैं सर कोशिश कर रहा हूँ इसको ठीक करने के लिए, वो भी लिखें.
Sir, I have a question. Yeah, sure. So just like in parents' opinion, that I took responsibility when my mother was operated twice in 2 years. So I took the responsibility of cooking and doing all the chores in house and also handling my father work. So do I have to be generalized or specified about what I did and how I took the Uh, responsibility? Firstly, I think may I request everyone to please give him a big hand. He deserves a great applause. I really, hats off, salute. Thank you, sir. Okay, it's really great matter to be proud of. If I were your father, brother, I really feel great to have a son like that, a brother like that. Very good. तो इसको Thank you, sir. लिखिए 2 लाइनें. मेरा वो इतनी मतलब क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है. The very fact that you make a reference to this kind of a thing, there is every chance that at some stage selectors might ask you about it, and then you get a chance to tell about your story. It brings you in a very good light. तो यही तो सब, this is the very purpose of this session कि भैया अपने बारे में कुछ बताओ. ठीक है, आपको कोई ज्यादा बहुत लंबी चौड़ी डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है. सिर्फ यह है कि इस घटना को, इसके बारे में जो जब आपने हैंडल किया इस डिफिकल्ट सिचुएशन को, 3-4 लाइनों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. Sure, Does that sir. answer your question? Yes, sir. Sir, one question for in friends section, that I'm a traveler kind of person, that I love to go various places. So, matlab, I could write that I love traveling with my friends and about the place. यही तो बोल रहा हूँ यार, यही बिल्कुल. Where is the doubt? Travel is your passion. You enjoy traveling. बस लिखो इसके बारे में. तो यही तो आपके बारे में पढ़ने वाले को मालूम होना चाहिए कुछ सॉलिड चीजें कि सर अठन्नी जेब में नहीं है लेकिन घूमने फिरने का बहुत शौक है, चले गए सारा जहां मर्जी जाके कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा. ग्रेट, समथिंग. Yes. वेल, सम पीपल मे बी वेरी सिक्योर, लाइक वो चाहेंगे कि पहले हर एक चीज बुक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सब कुछ उसके बाद में ट्रैवल करेंगे. तो whichever way that is, but write you must. Anything which gives specific information about you to the reader must be written. Yes, I hope that is clear. thank you, sir. Yes, sir. Sir, I would Sir, like I have to a ask one more question. Yeah. Okay, you can go on. I will ask at last. thank you. Sir, I was asking if you मैंने Yeah. तो कभी पहले I haven't written SD before. So sir, I was asking how should I go for SD? मतलब what is the पहले क्या यार करना? जो मन में आए लिख दो. पहले लिख के भेजोगे, एक 0th ड्राफ्ट कुछ तो मुझे दोगे, उसके बाद में मैं फिर बता सकता हूँ. तो ये मत सोचो अच्छी है बुरी है, जो भी है जैसी भी है. फर्स्ट यू राइट वट एवर कम्स टू योर माइंड. ये 4-5 सेक्शन दिए गए हैं. फिर जो और 2.5-3 पेज अगर थोड़ा ज्यादा भी लिखा जाएगा तो कोई बात नहीं है, उसको एब्रिज कर सकते हैं. ज्यादा को कम किया जा सकता है, वो कम वाले को ज्यादा करना मुश्किल है. तो जो मन में आता है लिखो, लिख के मुझे भेजो. Then I will give you my suggestions. Okay, sir. लिख के अगर आपने हैंड रिटन है तो फिर उसका कैम स्कैनर से स्कैन करके मुझे भेजो. I will reply back individually to each and every one. Yes, sir. In fact, this is again another very special theme. पिछले 6 साल में हूँ मैं इस एकेडमी में. मैं 6 साल में से हूँ. Or basically, as I mentioned, my background is purely technical. I'm from microwave and radar and communication and intelligence gathering. That was my field. In Air Force, I was associated with projects for setting up a nationwide network of radars and communication network, and also for setting up a inter-services Army, Navy, Air Force का तीनों का agency for gathering intelligence about China and Pakistan through satellite imagery. So these were my basic field. तो ये SSB का कहाँ से आ गया? While in staff college, I had written a thesis on tests conducted in the Self Selection Board. So that gained me a lot of fan following and appreciation right from the commandant there, and that is how it started. And I have been with this academy for the last 6 years. 6 साल में 5-6 केसेस ऐसे आए हैं जिनकी एसडी पढ़ते उनकी शक्ल मैंने नहीं देखी थी. एसडी आई इन मैनी अदर एसडीज. पहले ऐसे था. तो
नाम भी मालूम नहीं है, देख के भाई जस्ट लुकिंग एट द एसडी, इस बंदे को कोई रोक नहीं सकता, नो वन कैन स्टॉप। एंड सो फार जो 6 को मार्क किया था वो 6 के 6 जब सिलेक्ट। तो एज ए मेंशन के एसडी का पॉजिटिव इम्पैक्ट है बहुत, लेकिन ऐसी एसडी जिसको देख के ही बोले कि ये तो कोई इसको रोक नहीं सकता। तो हमने आपस में कुछ और बच्चों ने भी बोला सर ऐसी एसडी हमें आप पढ़ के सुनाइए, बताइए। तो we in house discussions between me, Colonel Yudhvir and others around, we discussed. So after discussions at length, we came to the conclusion कि इसका नुकसान ज्यादा हो सकता है, फायदा कम हो सकता है। अगर मैं किसी दूसरे की एसडी पढ़ के आपको सुनाऊं तो the content of SD is entirely individual। तो सिर्फ तो लिखने का तरीका जो है वही आप कर सकते हो, जो कंटेंट तो किसी को दूसरे के एसडी को फॉलो कर ही नहीं सकते। अगर आप करोगे तो दैट इज टोटली अगेंस्ट आवर फिलॉसफी। यू मस्ट मेन सेकंड नंबर 1 इज दिस, because the content of SD is entirely personal, entirely of your own, therefore you must not get influenced by the SD of somebody else, number 1। number 2, भाई जिसकी एसडी पढ़ के सुना रहे हो, एसडी में बहुत सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल भी हो सकती हैं, हो सकता है ही और शी मे नॉट फील वेरी कंफर्टेबल इन दोज डिटेल्स बीइंग टोल्ड टू द एंटायर लॉ। तो फिर हमने सोच समझ के यही डिसाइड किया कि कितनी भी बढ़िया एसडी क्यों ना हो, हम वो सब के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो दैट इज व्हाई मुझे बहुत एफर्ट करना पड़ता है इसके ऊपर। जब आपकी एसडी आती है मुझे आधा घंटा लगता है आपका पढ़कर उसके कमेंट्स बनाने के ऊपर बड़ा पूरे ध्यान से, बट आई एम विलिंग टू टेक दैट। सो आप अपनी एसडी लिखिए, लिख के स्कैन करके मुझे भेजिए एंड आई विल रिवर्ट टू यू विद माय सजेशंस। और सर आई हैव अ क्वेश्चन। हां प्लीज। सर एज यू सेड मींस अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, इंसिडेंट्स हैं, तो जैसे मेरे पेरेंट्स के साथ जो एक्सपीरियंस है, सो मतलब कोई 1-2 इंसिडेंट्स है जिनकी वजह से मैं अपने फादर की तरफ ज़्यादा क्लोज आया, पहले नहीं था। सो वो मैं अपने वाले सेक्शन में मेंशन करूँ या पेरेंट्स वाले सेक्शन में, ये एक डाउट आ रहा था। आइदर वे, बोथ वे, अपने वाले में कर दो, बोथ वे यू कैन मेंशन। ओके सर। हम कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट आना चाहिए जरूर, ये बहुत आना चाहिए। ओके सर। यही तो आपके जीवन के बारे में दूसरों को कुछ बताएगा। तो जब ये बात आएगी, there is every possibility in the SSB somebody might ask you, then you may give explanation. So you can make a reference in brief, and वहां पर आपके डिस्कशन के दौरान में, पर्सनल इंटरव्यू के दौरान में हो सकता है आपसे पूछा जाए, then you have a chance to explain your story in great detail. Okay sir, thank you. Hello sir. So, yes sir, could I ask something? please go ahead. एक इंसिडेंट था सर जो हमेशा हो जाता है मेरे और मेरे फादर के साथ, वो ये है कि सर किसी भी एक पॉइंट पे हो सकता है कि उनके आपका वीडियो नहीं आ रहा। ओके सर, डालो, लेट मी सी योर फेस आल्सो। हां ओके यस सर, प्रवीण पिल्लई। या ओके सो सर, ऐसा कई बार होता है कि पापा किसी एक पॉइंट पे उनको ओपिनियन डिफरेंट उससे गुजरते हैं। पर सर मुझे पता है कि मैं कभी एक बार ऐसा होता है कि मैं जबलपुर में रहता हूँ, तो जबलपुर से 25 किलोमीटर दूर पाटन में उनके फ्रेंड वगैरह रहते हैं। तो सर मैं उनको कहता हूँ कि एक बाइक राइड पे चलते हैं, और सर बाइक राइड के दौरान हमेशा हम लोग बात करते हुए चीजों को सॉल्व कर लेते हैं, और उसके बाद सर जब भी आते हैं चीजें ठीक हो जाती है। तो सर बाय दिस पर्टिकुलर थिंग हमारे रिलेशन यहाँ से बहुत अच्छे हो जाते हैं। हमें अच्छे से पता है कि जब हम लोग इंडिविजुअल एक ही बाइक पे लॉन्ग राइड पे होंगे तो इंडिविजुअली कभी उन्हें चलाना पड़ेगा बाइक को, कभी मुझे चलाना पड़ेगा, और सर रास्ते में हम लोग कई जगह रुकते हैं, हम लोग सारे मैटर सॉर्ट डाउन कर लेते हैं। तो सर ये मैं कहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ ये चीज? ये इंट्रोड्यूस के आप अपने वाले में कर दीजिए, अपने पेरेंट सेक्शन में कर दीजिए, दोनों में कहीं भी, आइदर वे, नॉट एन इशू। आप पेरेंट सेक्शन में कर सकते हो, दिस थिंग हैज हेल्प्ड एस्टैब्लिश अ वेरी गुड रैपो बिटवीन अस।
ओके सर। Sir, sir, for each recommended part, we have to take a different para. We have to write in different para. डिफरेंट Like- पैरा हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है कि पहले पेरेंट्स ओपिनियन फिर टीचर्स ओपिनियन, हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ईच पार्ट शुड बी कवर्ड इन अ डिफरेंट पैरा। और पहले उससे स्टार्टिंग में ये लिखने की जरूरत नहीं है कि माय नेम इज सो एंड सो, आई वाज बोर्न एट सच एंड सच प्लेस। जो फैक्चुअल डेटा है वो पीआईक्यू फॉर्म में पहले ही आ गया है, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। बोर्न सो एंड सो, यहाँ पर मेरी एजुकेशन हुई, ये हुआ वो हुआ, नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज सुपरफ्लुअस, not required, that is already there in PIQ. SD में talk about your special qualities, character and all that. Yes, sir. Thank you, sir. तो मुझे एक क्वेश्चन पूछना है सर पूछिए, कि सर जो मतलब युद्धवीर सर का एक कोट है कि डोंट वरी अबाउट हाउ थिंग्स माइट टर्न आउट, जस्ट रिमेंबर दैट नथिंग केम टू दोज हु डिडंट ट्राई। तो सर ये कोट मुझे सिर्फ सिंपल लिखना है कि इस पे क्या मतलब कैसे लिखूं, अगर थॉट्स और ये लाइफ ओरिएंटेड या मतलब फिलॉसफी में? लिखिए, ये कोट आपको अच्छा लगता है, लिखिए आई लाइक दिस कोट। if you want to give some reason, you can precisely, you see, अगर आप कोई particular quotation आपको आपके मन को भाती है तो वो आपके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देती है रीडर को, तो जरूर लिखना है। ओके सर, राइट। तो अगर इफ देयर आर नो फर्दर क्वेश्चंस, फिर मैं पीआईक्यू का जो थोड़ा सा हिस्सा रह गया मैं उसको आगे कवर कर देता हूँ। सर वन क्वेश्चन आई हैड प्लीज। सर, ये बुलेट पॉइंट्स में लिखना है या फिर पैराग्राफ में लिखना है सर, क्या बेटर रहेगा? बुलेट पॉइंट्स में भी लिखें तो कोई बुरा नहीं है उसमें भी, लेकिन जनरली पैराग्राफ टाइप में लिखते हैं। अब वो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम देयर, अगर वहाँ आपके पास मैटर ज्यादा है और टाइम कम है वहाँ पर, तो फिर कुछ हिस्सों को वहाँ पर एवरेज कर दीजिए, रियल टाइम में बुलेट पॉइंट्स में लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। ट्राई टू राइट इट इन रेगुलर सेंटेंसेस, बट अगर वहाँ पर टाइम की कमी लगती है और आपके पास कंटेंट ज्यादा है तो फिर वहाँ पर बुलेट पॉइंट में कर सकते हैं, तो ऐसा। सर एसडी में एक एक सवाल अलग अलग होता है और उसके नीचे जगह होती है, या फिर पहले ब्रीफिंग में बताते हैं कि ये लिखना है आपको? नहीं, ये बताया ना आपको, 5 सेक्शन है, 5 सेक्शन इस तरह बना के लिखना है। पेरेंट्स ओपिनियन, हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, फिर टीचर्स ओपिनियन, फिर फ्रेंड्स ओपिनियन, फिर योर ओन ओपिनियन एंड डिस्क्रिप्शन, आपकी अपनी ओपिनियन डिस्क्रिप्शन, एंड लास्टली वीकनेसेस एंड हाउ यू प्लान टू ओवरकम दैट। ओके। But in the last 1 year or so, I have seen tremendous amount of improvement in the SDs that have been coming from the students. बहुत अच्छी SDs, बहुत अच्छा improvement मिला है compared to the previous listing. So I'm sure it will continue. Basic है कि भाई आपके बारे में information मिलनी चाहिए, आपका क्या इंटरेस्ट क्या है, आपके डिजायर क्या है, आपका क्या ड्रीम है, क्या कुछ भी, हाउस एवर वाइल्ड ड्रीम इट मे बी, नो वन ऑफ दीज प्रीवियस बैच में वन ऑफ द कैंडिडेट्स रोट, वेल शी सेज के भाई मेरा असली ड्रीम तो ये है कि मेरे पास काफी सारे पैसे इकट्ठे हो जाएं और मैं जो सोशली डिसएडवांटेज्ड लोग हैं, जो you can say maybe unemployed, maybe even that transgenders or gays or whatever it is, those who are discarded by the society in general, कि उनको मैं एम्प्लॉय करूं और उनको एम्प्लॉय करके मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप चलाऊं, और ये मेरा ड्रीम है। वेल, मस्ट ट्राई। तो जो भी howsoever wild may be your dream, must try. In fact, the biggest curse of the present civilization is that most parents, they kill the dreams of their children, they nip it in the bud,
अरे ये शेख चिली है, ये क्या करेगा, पहले जो हाथ में है वो तो काम करो. बट दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. एनीवे दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. बट यस, जो भी ड्रीम्स आपके हैं, हाउस जो इच्छा जो आपको लगता है यार शायद इस जन्म में तो पूरी नहीं होगी, अगले में होगी, पर इच्छा है, लिखो उसके बारे में. राइट ए लाइन, वन लाइन, गुड इनफ. Okay, I am now reverting back to that PIQ. जो PIQ का जो लेफ्ट ओवर पोर्शन था, थोड़ा सा 15 मिनट का रहता है, वो मैं उसको कर देता हूँ. जस्ट शेयर स्क्रीन. ओके, हम यहाँ थे 11B पर. 11A था स्पोर्ट्स के बारे में. उसके बारे में थोड़ा सा एक बार दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं. स्पोर्ट्स के बारे में मैंने सिर्फ यही बोला था आपको कि कौन सी स्पोर्ट्स आपने खेली, किस पीरियड में खेली. यू कैन गिव द प्रिसाइज ईयर्स. जैसे अभी 2020 चल रहा है, तो यू कैन से 2017 टू 2020 और 2017 ऑनवर्ड्स, अगर अभी भी खेल रहे हो. फिर रिप्रेजेंट किया स्कूल, कॉलेज या अपने रेजिमेंट या अपने यूनिट को रिप्रेजेंट किया. उसमें जिसको रिप्रेजेंट किया लिखो रैप स्कूल और रैप कॉलेज और रैप यूनिट और रैप कमांड, व्हाटएवर. अगर कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं किया तो उसको छोड़ दीजिए. और फिर लास्ट था अचीवमेंट्स में यू वन एनी मेडल, तो विच एवर मेडल यू वन, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, और किस लेवल पर कंपटीशन हुआ था, दोनों साथ में इकट्ठा लिखना जरूरी है. बिकॉज इट इज एसेंशियल कि विनिंग ए गोल्ड मेडल एट ए मोहल्ला लेवल कंपटीशन इज वन थिंग, एंड mere participation in the national without winning any medal, so that is an altogether different thing. तो जो मेडल जीता किस लेवल पे, वो भी लिखना जरूरी है. और अगर आपने किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं किया पर आप गेम खेलते हो तो लिखना जरूर है. अगर आप सिर्फ गली मोहल्ले लेवल पर भी खेलते हो तब भी लिखना जरूर है कि ये गेम खेलते थे. तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. यस सर. ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट इज हॉबीज एंड इंटरेस्ट. हॉबीज एंड I have a doubt. या प्लीज. Sir, this is Digvijan. या Sir, जो हमारा 5th वाला पॉइंट है PIQ में, जहाँ पे स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है. हाँ सर, मतलब मेरी पैदाइश तो मैं कर्नाटक में हुआ हूँ, लेकिन मेरा पूरी स्कूलिंग पूरी जितनी भी है वो पूरा तेलंगाना में हुआ है. तो यहाँ पे मैं स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में मैं अपना जो परमानेंट एड्रेस का लिखूंगा या फिर मैं जो करंटली जो एड्रेस पे हूँ उसका लिखूंगा. आप इमोशनली अटैच्ड किसके साथ ज्यादा फील करते हो? तेलंगाना के साथ सर. बस फिर दैट इज द मतलब आंसर. क्योंकि मैं ज्यादातर यहाँ पे रह चुका हूँ इसीलिए. बस दैट इज द आंसर. बस दैट्स ऑल. जिसके साथ आप ज्यादा इमोशनली अटैच्ड फील करते हैं, जिस जो आपको अपना लगता है, बस वही है. ओके सर.
और पहले स्टेट लिखेंगे और बाद में डिस्ट्रिक्ट, जैसे जैसे द ऑर्डर इन विच इट इज गिवन. एंड यू कैन आल्सो राइट एब्रिविएशन. आई डोंट नो तेलंगाना का क्या abbreviation है. पंजाब का फॉर एग्जांपल पीबी इज गुड इनफ. पीबी विद इन तेलंगाना ब्रैकेट का TS है सर, तेलंगाना स्टेट TS. तेलंगाना स्टेट. एंड ओके सर. तो चलिए लेट्स रिज्यूम ऑन दिस. स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे थे. तो स्पोर्ट्स का किसी को डाउट? नो सर. ओके चलिए. नेक्स्ट इज हॉबीज एंड इंटरेस्ट. तो ये हॉबीज एंड इंटरेस्ट में एक तो ये तो बाय द वे है कि हॉबी और इंटरेस्ट में क्या फर्क है. पहले तो हॉबी इज लेजर, प्लेजर, रेगुलरिटी. जो आप एक्चुअली काम अपने प्लेजर के लिए करते हो और हमेशा करते हो. वेले आ गए, पहले आ गए, कहीं पहुंच गए, 15 मिनट पहले पहुंच गए, टाइम है एक्स्ट्रा, क्या कर रहे हो? वट एवर यू आर डूइंग दैट इज योर हॉबी. वट एवर यू आर एक्चुअली डूइंग योर on a day-to-day basis during your entirely spare time, that is your hobby. और interest क्या है? Any field of activity that really excites you but which you cannot follow on a day-to-day basis for want of time or whatever. तो anyway ये तो वहां पर आपको distinguish करने की जरूरत नहीं है. ये तो ऐसे ही बताया है क्योंकि वहां पर तो दोनों को इकट्ठा ही मिला के लिखना है. तो वो उसकी श्रद्धा है. जिसको हॉबी समझना हॉबी समझे, इंटरेस्ट समझना इंटरेस्ट समझे, व्हाटएवर. अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है. ओके ये हो गया. पैसिव हॉबीज लाइक व्यूइंग टीवी. तो इसका कैसा, ये जनरली अच्छा नहीं समझा जाता अनलेस यू आर वॉचिंग इट फॉर ए स्पेसिफिक थिंग. अगर आप ये कहें कि मैं इसमें नेशनल ज्योग्राफिक का ये चीज देखता हूँ या कहाँ की इंस्पिरेशनल स्टोरीज देखता हूँ या व्हाटएवर, फॉर प्योर एंटरटेनमेंट आल्सो यू कैन सी सम सीरियल्स. बट जनरली पैसिव हॉबीज like viewing TV are not considered not considered very good. लेकिन एक क्वेश्चन जो आता है वो कई बार मुझे बच्चे पूछते हैं, सर मेरी कोई खास हॉबी नहीं है, आप बताओ मैं क्या लिखूं. दिस इज ए वेरी अनफेयर क्वेश्चन टू मी, क्योंकि ये मैं नहीं बता सकता आपको कि आपको क्या, आपकी हॉबी क्या क्या है या क्या होनी चाहिए. बट सिंपलेस्ट हॉबी भी लिसनिंग टू हिंदी फिल्म सॉन्ग्स. हाँ जी, हेलो हेलो हेलो. क्या प्लीज प्लीज मेरा क्वेश्चन है प्लीज. श्योर सर. जो हॉबी है वो कितनी पुरानी होनी चाहिए? मतलब पुरानी मीन्स हॉबी, मतलब जैसे हॉबी अगर 6 महीने पहले लगी है, स्टार्ट किया है, तो वो इट कैन बी हॉबी. यस 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 श्योर श्योर बिल्कुल बिल्कुल. जो आजकल बिल्कुल. तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हॉबी जो है आपकी बड़ी सिंपल हो सकती है. जैसे मुझे खाने पीने का बहुत शौक है तो मैं इसलिए कभी कभी कुकिंग भी करता हूँ, तो कुकिंग में भी योर हॉबी. और एज ए सेड लिसनिंग टू हिंदी फिल्म सॉन्ग्स. लेकिन जो भी हॉबी आप लिखें उस हॉबी की कम से कम एलिमेंट्री नॉलेज होना जरूरी है. ये सिर्फ ये इंपॉर्टेंट बात है. एलिमेंट्री नॉलेज अबाउट द मेंशन्ड हॉबी इज ए मस्ट. ये नहीं होना चाहिए कि सिंपल से सिंपल क्वेश्चन आपने पूछे कि मुझे हिंदी फिल्मों के गाने सुनना मेरी हॉबी है, पूछेगा यार बताओ 2-4 कोई गाने जो आपको बड़े अच्छे लगे. आपने कोई गाने का नाम बताया, तो पूछा अच्छा इसको हु इज दिस सिंगर, एंड यू से तो फिर बात नहीं बनी ना. इफ आपको कंपोजर लिरिसिस्ट ये तो बहुत बाद की बात है, लेकिन आपको अगर ये भी नहीं पता कि ये गाया किसने है तो फिर तो हॉबी बात बनेगी नहीं. राइट. तो थोड़ी एलिमेंट्री नॉलेज तो होनी चाहिए. यू में से कुकिंग पर, किचन में कभी आपने पाँव नहीं रखा, आप यू कांट इवन मेक ए कप ऑफ टी, आप यू डोंट नो हाउ टू डू दैट, तो फिर वो ठीक नहीं. राइट. So I have Yes. one doubt, like is it a hobby or thing? मतलब बोल पता नहीं मुझे, लेकिन I cannot see my father's vehicle
डर्टी, तो मैं भले ही मेरा अपनी गाड़ी खराब रहे, साफ ना रहे, लेकिन मैं अपने पापा की गाड़ी हमेशा साफ करके भेजता हूँ नहीं, ये आप एसडी में लिखिए, लेकिन ये यहाँ पर पीआईक्यू में इसको हॉबी में नहीं, दिस यू कैन नॉट बी कॉल्ड ए हॉबी, बट यस दिस इज ए स्पेशल हैबिट ऑफ योर्स दैट यू कैन राइट इन योर एसडी. यस, ओके सर. ओके, राइट. तो सर यस यस प्लीज गो अहेड. सर कैन फिजिकल एक्टिविटीज भी हॉबी? हाँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है यार. इसको आप करना युधिष्ठिर से एक बार पूछ लेना. लेकिन ये वो स्पोर्ट्स अलग है. अगर आप जिम्नास्टिक्स हैं या किसी स्पोर्ट्स में आप हिस्सा लेते हो तो वो हॉबी, फिर वो स्पोर्ट्स का कॉलम अलग अलग क्यों पूछ रहे हैं? अगर ये सर जिम्नास्टिक के बारे में ही पूछ रहा था. I don't think, not you can't call it a hobby. Yes, but लिखना जरूर है जो भी है. Somewhere आपकी एसडी में तो जरूर लिखना है कि जिम्नास्टिक्स में इंटरेस्टेड इन जिम्नास्टिक्स और व्हाटएवर इट इज, या रेगुलर. यस सर. रेगुलर गो टू जिम. राइट सर. अगर आपने 6 पैक्स हैं तो ठीक है, दिखाइए वो हिंदी में व्हाटएवर. देखते हैं सर वहाँ पे. यार ठीक है. नहीं somebody might और यार जरा वैसे व्हाटएवर. Sir, I'm a continuous. Go ahead. सर मैं रेगुलर फॉलोअर हूँ मोटर स्पोर्ट्स का सर. मैं खुद तो करता नहीं, लेकिन रेगुलर फॉलो हूँ. मतलब F1 को और दूसरे जो मोटर स्पोर्ट्स हैं उनको काफी फॉलो करता हूँ. Deserve the mention. Absolutely deserve the mention. सर लेकिन वो कैसे मेंशन करें? इंटरेस्ट में इंटरेस्ट में मोटर स्पोर्ट्स लिख सकते हैं. हाँ, मोटर स्पोर्ट्स spectator, watcher. You never know if one of the selectors is also a motor sports enthusiastic party, he may start asking you that. Okay sir. जब मैं 52 साल पहले 52 years back when I had gone for my interview 53 years back, तो मेरे one of my hobbies apart from other I was reading. तो इसे कौन सी किताबें पढ़ते हो, किस तरह की? तो मैंने कहा सर फिक्शन भी पढ़ता हूँ, नॉन फिक्शन भी पढ़ता हूँ. नॉन फिक्शन में ये पढ़ता हूँ. तो उसमें कोई नाम था बर्ट्रैंड रसल. तो बाई चांस वो मेरा आधे घंटा मेरा वो बर्ट्रैंड रसल के बारे में पूछता रहा. एंड मैं उसको चूंकि बिकॉज आई वाज सच ए thorough fan of that person. I had read his autobiography. I had read number of books written by him, each and every essay written by him. And in fact, I even said that if the human race is alive at that time, his contribution in world peace was also great. So it went on for half an hour. And उसके दौरान itself, उसी वक्त में I was very sure कि not only I'm selected, पक्का पूरा 100% हो गया. Well, so it can work out something like that. आपने मोटर स्पोर्ट्स का लिखा, बाई चांस वो भी मोटर स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, he might start asking you, one thing leads to another. Okay sir. तो लिखना जरूर है in any case. Yes sir. Sir. Yes. Sir, like in interest, like it need not be always an activity, right sir? Like it can be any particular topic that you usually follow and you're trying to bring changes in your personal life on that particular topic. Yes. Can that? Sure. Yes, I get your point. Yes, For sir. example, मैं एक ही कह रहा, somebody may be interested in astrology or palmistry. This is not an activity. Yes, sir. तो कुछ Yes, भी. sir. Yes. It need not necessarily be an activity. Okay, sir. So that can also be included. Yes. Yeah. Yes. Sir, I want to ask, sir. I play online chess. Online? So I play online chess. नहीं, आपकी आवाज कट के आ रही है. Chess, yes, sure, बिल्कुल. Chess online. Yes. So shall I mention this in the interest? Yeah. Where is the doubt? Okay. ऐसी चीजों में कभी it's a sports also, sir. ये बाई चांस ये ऐसा है कि ये डाउट आए सर ये लिखूं कि ना लिखूं, द आंसर इज यस. बाई चांस कभी भी ओके बिल्कुल लिखना है, 100% लिखना है. Excuse me, sir. Yes. Yes, These minor things sometimes can work wonders. By the way, of course, I'm not saying that selection process is very scientific, very good, but these selectors are also human beings. They are also human beings. Sometimes these small little things can also affect. अगर आपका मैच करता है उसके साथ में इंटरेस्ट kind of a thing,
चलें आगे, चलो नेक्स्ट। सर मेरा एक डाउट है सर। गो अहेड। यस प्लीज आस्क डाउट। देव Yeah, देव भाई स्टार्ट कीजिए। ओके सर, मतलब मैं डेली बेसिस पे सर पॉडकास्ट सुनता हूँ सर, जैसे जोश टॉक हो गया ये, तो सर इसमें पर मेरे से मतलब ये लिखना चाहिए क्या इसमें? नहीं, डेली बेसिस में क्या सुनते हो सर? जोश टॉक सर एक मतलब पॉडकास्ट होता है सर, मतलब जिसमें स्पीकर्स आके अपनी अपनी कहानी मतलब सुनाते हैं सर। अच्छा नहीं, मुझे थोड़ी नॉलेज नहीं है इसके बारे में, मुझे नॉट थोड़ा, मुझे अगर आप इफ यू एजुकेट मी देन आई विल बी एबल टू से समथिंग। सर जैसे टेडेक्स रहता है ना, जहाँ पे आके बड़े बड़े स्कॉलर्स और बड़े लोग आके उस मतलब कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में जो एक्सपर्ट्स रहते हैं वो आके अपने एक्सपीरियंस बताते हैं टेडेक्स के तरह। Where is the doubt? You must write. Yes, absolutely, 100%, not the slightest doubt. Must write. पर सर एक चीज रहती है कि सर जैसे जो आते हैं मोटिवेशनल मतलब स्पीकर्स, वो सब बोल देते हैं, पर मुझे उनके नेम याद नहीं रहते कि जैसे इन्होंने किया, पर नॉलेज याद रहता है सर कि उन्होंने क्या बताया क्या। तो अगर मान लीजिए somebody cross question you there, sir, forgetful of the name, but I know the contents, तो ये पिछले 3 लेक्चरों में ये मेन बातें थी, good enough. Okay, defend yourself boldly. अगर आपने झूठ नहीं बोला है तो defend yourself boldly. Like you know, I gave you the example कि हम वो उसकी बात करते थे achievements की, and I said कि अगर एक बच्चे के नंबर 40% आते हैं मैथ्स में, 30% आते हैं साइंस में, इंग्लिश में आते हैं 93%, and he shows it in the achievement 93, he shows achievement, वहां पर ऐसे भी में उसके पीछे बढ़ गए क्या? What do you think? आजकल को तो बच्चों को 98% भी आते हैं, तुम इसको अचीवमेंट मानते हो? So that is where you have to defend yourself boldly, and that is what he did. In fact, he said, सर मुझे बाकियों से क्या कंसर्न है, मेरे बाकी सब्जेक्ट में नंबर देखो, उसमें 45% है, 40% है, तो मेरे हिसाब से तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट, आई फेल्ट वेरी हैप्पी, सो आई कंसिडर इट एज माय अचीवमेंट। आपकी मर्जी, आपने मानना है मानो, नहीं मानना ना मानो, फेयर एनफ। ओके, तो राइट, चलिए इसको आगे करते हैं, फिर लास्ट में आई विल टेक डाउट्स अगेन। तो ये हॉबीज इंटरेस्ट का हो गया। ए वर्ल्ड ऑन लिविंग इट ऑल टुगेदर ब्लैंक, तो ये मैं सिर्फ आपको कहना कि कुछ बच्चे पूछते हैं सर मैं इसको बिल्कुल खाली छोड़ दूं, तो आई कैन ओनली से कि अगर बिल्कुल खाली छोड़ दो तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि चूंकि आपने ये कॉलम खाली छोड़ दिया इसलिए आप रिजेक्ट हो गए। सॉरी, वो तो नहीं। Nobody is going to be rejected because he did not have a hobby. But एक बार आइडिया जरूर आता है दिमाग में कि यार बड़ा ड्राई किस्म का आदमी है ये, you know, the very famous warriors who hardly ever lost a battle. I will give you some example. Okay. जो सबसे ज्यादा एरिया इंडिया का कवर करता था मुगल एम्पायर, किस मुगल एम्पायर के दौरान इंडिया का सबसे बड़ा एरिया जो है वो मुगल एम्पायर के अंडर था? बताएंगे कोई? Will somebody tell me? सर आई थिंक खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। नहीं, मुगल एम्पायर, औरंगजेब सर, औरंगजेब was, it went up to Afghanistan, right down up to the Deccan. This bugger was so ambitious. His father was literally scared of him and he always kept him away. दक्षिण में जाओ, 11 साल 12 साल उसको वहां दक्षिण में रखा था, बट ये पट्टा जहां भी गया जीत के आया। He always won. Okay, but sir, he lost in Maharashtra. Maybe, you know, maybe one or the battle he might have lost. Most of the battles he won. Okay, most of the battles he won,
And in fact, as I said, when he came to Delhi back, he was the युवराज जो है, जिसको घोषित किया गया था कि जो बाद में heir apparent, that was his elder brother Dara Shikoh. He was supposed to have become the king. This fellow got all his brothers killed. ये caught hold of Dara Shikoh, उसके ऊपर मुकदमा चलाया and all that kind of a thing, and the clergy को पकड़ लिया, अपने बाप को पकड़ के जेल में डाल दिया, okay, and then he became the king, right? There's one thing which was very, very special about him. They say he was an extremely honest fellow. He says वो अपनी जो उसकी अपनी डेली जरूरतें थी, उसके लिए वो सरकारी खजाने से पैसा नहीं लिया करता था, और वो अपने आप टोपियां सीता था. टोपियां सी के जो उसके जो मैसेंजर विल गो एंड सेल इट इन द मार्केट, और वो उससे पैसे मिलते थे तो उससे अपनी डेली जरूरतें पूरी करता था. तो ये आदमी जो होता है ना, सच पीपल, उसने साले ने सब म्यूजिक बंद करा दिया, आर्ट बंद करा दिया, नाचना गाना बंद करा दिया, ऑल हॉबीज बंद करा दिया. तो सच पीपल हु डोंट हैव एनी अदर इंटरेस्ट इन लाइफ, जिस फील्ड में जाए, हो सकता है उसमें दे में वर्क वंडर्स, बट इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि खुद किसी चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट है नहीं, और जब किसी दूसरे को आप इस तरह की चीज में इंटरेस्ट लेते देखते हो तो आप जल भुन जाते हो, and you are actually you become against them. You have a big grudge against other people who enjoy small pleasures of life, because you yourself are so austere or so stoic. That is the biggest actually argument against people who practice austerity, the people who practice self-denial, the people who practice stoicism. उनका अगेंस्ट सबसे बड़ी बात यही है, वो खुद तुम करो, जो करना करो, करो मरो ना करो. They start expecting others also to do the same thing. तो हॉबी इंटरेस्ट ना होने का, there is little bit of a chance, that such fellow can be may view others enjoying small pleasures of life. They may begrudge others who enjoy these pleasures. ठीक है, तो बस इतना ही है कहना इसके बारे में, और कुछ ज्यादा तो है नहीं. तो अगर लेकिन फिर भी अगर आप इसको खाली छोड़ते हैं तो merely because you have left it blank, तो ऐसा नहीं है कि you are going to be rejected. But yes, first impression is he is a very dry and dull kind of a person. So in my last coaching, I was asked not to write any of my sports and as well as my hobbies and achievements also. What's it? In my last this is my मैं जो पहले वाले कोचिंग एकेडमी में था, वहाँ पे मुझे ना ही मेरे स्पोर्ट्स के बारे में, ना ही मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और हॉबीज से लिखने को मना किया गया था मैंने. अब मैं क्या बोलूं यार इसके नहीं, बारे में. मुझे ये मोटी गाली देने को दिन करता है मेरा, लेकिन मैं what should I say? मुझे ये कहा गया था कि जब सबकी हॉबीज वगैरह सब ड्राइंग, लिसनिंग, म्यूजिक, ये सब सेम लिखेंगे तो अलग का दिखेगा. तो लिखो ही मत, जब वो पूछेगा तब तुम बताना है. ऐसा You don't have to show anything. You don't have to bother about what he is going to think or how he is going to view. Present yourself as natural personality. Well, बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर आपको लगता है कि ये सच में आपकी कमजोरी है तो उस कमजोरी के ऊपर वर्क कीजिए जरूर. But there is no need for you to try to dissimulate or try to simulate something. जो आप में है नहीं वो दिखावा करने की जरूरत नहीं है. Not required at all. Okay. हमारे तो लक्ष्य एकेडमी में हम तो we are totally opposed to this. It's not built on that philosophy at all. As Colonel Yudhvir keeps mentioning, ये SSB तो ऐसे ही है. अगर आपके पेरेंट्स ने आपको पास कर दिया, आपके टीचर्स ने पास कर दिया, आपके फ्रेंड्स ने पास कर दिया, आपने खुद को अपने आप को पास कर दिया, तो SSB का सारा बाप भी पास करेगा. They can't fail you at all.
एनीवे चलिए नेक्स्ट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी. व्हाट इज एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी? कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ छोटे से. पार्टिसिपेट ड्रामा, पढ़ाई लिखाई को और खेल कूद को छोड़कर बाकी सब कुछ, एवरीथिंग. ड्रामा, थिएटर, डिबेट, डेक्लामेशन, कविता लिख रहे हो, कोई प्रोज लिख रहे हो, कोई बिलॉग लिख रहे हो, म्यूजिक में सिंगिंग, कंपोजिंग, राइटिंग लिरिक्स, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, आप ओके, डांसिंग आल्सो समवेयर, टेकिंग पार्ट इन सोशल कैंपेन. आपके कॉलोनी में सफाई अभियान चल रहा है और आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इसमें, तो दैट इज आल्सो एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी. कुछ भी यार, एनीथिंग, पेंटिंग, स्कल्पटिंग, ओके, तो दैट इज एन एक्स्ट्रा. सर आई वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन. सर मैंने जैसे एक बार मैंने इसमें ड्रामा में पार्ट लिया था, उसे एक बार दिया मैंने आंसर, बट उसकी मुझे स्टोरी ढंग से याद नहीं है, मतलब उसमें क्या हुआ था. क्या क्या ड्रामा में पार्ट लिया था, कब, हाउ फार बैक? सर इन 11th स्टार्टिंग, मतलब अराउंड 2 साल होने वाले हैं वो हमारे. हाँ ठीक है, दैट इज ओके. स्टोरी बहुत पुरानी बात है. मोस्टली दिस काइंड ऑफ थिंग शुड पर्टेन टू द पीरियड आफ्टर कॉलेज, मतलब कॉलेज या कॉलेज के बाद का. तो स्कूल टाइम में जो है वो इसका उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है. लिखो तो हर्ज नहीं है, लेकिन प्रेफरेबल during college and during later period. Sir? Yes. Sir, could I speak? Sure, please go ahead. Sir, I am Dev Praveen Pillai. Yes, So yes. I have this particular interest of doing adventure activity because sir, I am from NCC and from there I get this interest. Sir, Jabalpur में Dumna National Park के I went to the jungle cycling expedition along with my friends. Apart of that, sir, in my birthday, along with my brother, I went for parasailing plus rock climbing. Sir, I did all these things. In my NCC, I did trekking, sir. So, can I mention this in this? पहले तो इसमें कोई डाउट नहीं है. Firstly, great, hats off. Okay, accept my compliments. Very good. And where is the doubt? यही तो यार 3 दिन जैसे यही तो मेंशन करना है. बिल्कुल. These are something to be really proud of. Good. Okay. Okay, sir. Must mention. चलिए आगे. सर मेरा भी एक सिमिलर डाउट है सर. जैसे मैं भी एनसीसी में हूँ, तो हम लोग जो ये ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, तो सर वो मेंशन करना है, और इसमें जो ड्यूरेशन पीरियड है सर, इसमें क्या 1 डे लिखना है? जो भी 1 day, yes, ड्यूरेशन पीरियड, या इसे 1 day के बजाय के यू कैन गिव दैट द मंथ एंड द ईयर. जिस मंथ में हुआ, अगर डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, यू से ओके यू डोनेटेड ब्लड डोनेशन किया आपने इन जून 2018, राइट? जून 2018. ओके सर, ठीक है. यस sir. It is like, sir, like in extracurricular activities, should we include activities in which we only participate, like in school, colleges or something, or can it be something not related to all this? नहीं. So I couldn't catch your question. Sir, should we include activities that we participate only, like in school, colleges, or somewhere else, or can it be any other activity that we involve other than academics and sports? देखो ऐसा है, अगर सिर्फ आप वॉचर हो, स्पेक्टेटर हो, तो वो बात नहीं बनती. अगर आप सिर्फ ड्रामा देखते हो, तो वो फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन नहीं हुआ. पार्टिसिपेशन होनी चाहिए. that only carries. अगर आप लेट्स से क्या कहते हैं आजकल वो आते हैं ना सिंगिंग कंपटीशन और ऑल दैट, अगर वो देखते हो तो देखने में नहीं, नॉट एक्सपेक्ट. Sir, but that need not be a competition, right, sir? Need not be competition. Need not be competition. Need not be competition. Okay. Yeah. Okay. चलिए. Next. Sir, I have a question. Yeah. Sir, back in my second year of college, we and some of my friends were involved in making some YouTube videos, but later on, due to some conflict between some 2 of my friends, मतलब उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था. सो मतलब फिर वो जो YouTube वगैरह का चैनल था वो सारा सब कुछ बंद हो गया.
and later on the videos were also deleted from that. तो वो mention कर सकता हूँ extra curricular में that I was involved in making videos on YouTube. Tell me, you put in a lot of work in that? हाँ सर, मैंने मतलब वो जो मतलब एक वीडियोस है तो उसका डायलॉग वगैरह एंड ऑल था, तो वो मैंने ही किया था सर। वो जो उनकी वीडियोस की व्यूअरशिप वगैरह कैसी थी? सर इट वाज स्टार्टिंग, सो 2000 के अप्रोक्सीमेटली 2-3 दिन में व्यूज आ गए थे ऑन स्टार्टिंग। सो 2 ही वीडियोस अपलोड किया था हमने, उसके बाद फिर प्रॉब्लम हो गई तो फिर सब कुछ हटा दिया। ओके, अच्छा ऐसे करो, जो इसकी डिटेल्स नहीं मुझे आप सेपरेटली लिख के भेजो, बिकॉज सी दिस कैन वर्क बोथ वेज। तो थोड़ा सा अगर मुझे लिख के डिटेल भेजेगा, देन आई विल बी एबल टू अप्लाई माय माइंड वेरी critically and we'll let you know ठीक है। तो डिटेल्स किस तरीके की? ऑफ हैंड, आई डू नॉट वांट टू आंसर जस्ट ऑफ हैंड कि कुछ भी बोल दो। तो आप मुझे थोड़ी इसकी डिटेल्स लिख के भेजो, क्योंकि जब आप इस तरह से पूछोगे तो दे विल आस्क, एक बात से दूसरी निकलती है, दूसरी से तीसरी निकलती है, तो उसमें वो क्यों उसको आपके दो फ्रेंड के बीच में किस बात के ऊपर झगड़ा हुआ या क्या हुआ, फिर क्यों हटी वहां से, तो ये थोड़ी डिटेल्स दो, देन आई विल बी एबल टू से। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये मैं 5 मिनट में इसको खत्म करता हूँ, देन आई विल रिजर्व द नेक्स्ट 10 मिनट्स फॉर क्वेश्चंस। पोजीशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी 11D। इससे पहले हमने 3 फील्ड अलग अलग थे, पढ़ाई लिखाई अलग थी, खेल कूद अलग थी और एक्स्ट्रा करिकुलर अलग थी। इसमें फिर इकट्ठा कर दिया। इसमें जो रिस्पांसिबिलिटी है वो किसी भी फील्ड में हो, पढ़ाई लिखाई में हो सकती है, जैसे एकेडमिक्स में आप क्लास के मॉनिटर थे, आप हाउस के कैप्टन थे, आप प्रॉक्टर थे हॉस्टल में या कुछ ऐसे, या स्पोर्ट्स एंड गेम में यू वर द कैप्टन ऑफ ए टीम और यू वर द मैनेजर ऑफ ए टीम, तो वो भी पोजीशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी है। या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अगेन यू वर द डायरेक्टर ऑफ द प्ले या यू वर द ट्रेजरर ऑफ द सोसाइटी। सब पैसे वैसे इकट्ठे करके आपके पास सब हिसाब किताब रखा जाता था ड्यूरिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज व्हाट एवर इट इज। कोई भी जिम्मेदारी का काम, वो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो, वो खेलकूद से रिलेटेड हो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से, जिसमें आपने आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई और आपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह किया। दिस कैन इवन गो इन सोशल फील्ड आल्सो। आपकी सिस्टर की शादी थी, आपके फादर ने बोला कि भैया ये बैंक्वेट हॉल बुक करने का काम आपका है, या इनविटेशन कार्ड भेजने का सारा काम आपका है, और आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी बखूबी निभाई, अच्छे से निभाई, वो भी लिख सकते हो। तो कोई भी जिम्मेदारी का काम सर फिर उसको मेंशन कैसे करेंगे सर? स्पोर्ट्स एंड गेम से रिलेटेड हो, एक्स्ट्रा करिकुलर से, उसके बारे में लिख सकते हैं। सर हाउ कैन वी मेंशन दोस थिंग्स लाइक मेरे दोस्त की बहन की शादी थी तो आई वाज गिवन द टास्क टू इनविटेशन कार्ड्स सबके घर जाके भेजने की। हाँ, तो ये मेंशन कैसे कर सकते हैं? वो 2 वर्ड्स में लिखो वहां पर। ओके, दिस इंचार्ज इनविटेशन कार्ड्स फ्रेंड्स वेडिंग। ओके सर, बस ओके सर। 2-4 शब्दों में लिखना है। वो there is every possibility, everything depends upon how you feel. अगर आपको सचमुच में लगता है कि आपने बड़ा अच्छा काम किया था, आपको वो याद करके खुशी मिलती है, तो लिखिए। अगर सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखना, क्योंकि बिकॉज जो आपके अंदर है वो आपके बाहर झलकेगा। जब सिलेक्टर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो अगर आप उस काम के बारे में आपने अच्छे से नहीं किया एंड यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट, तो वो आपके आंसर में निकल के आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा। So everything depends upon how in the core of your heart you feel while doing that job, while discharging that responsibility. Did you do a good job? If you Yes, feel sir. yes, if you feel happy about it, you must write. As simple as that. Okay, sir.
And sir, if there is not any position or responsibility, छोड़ दो, उनको खाली छोड़ दो. we can write nil or we should leave it. Nil, no problem. सर और जो लोग सर्विंग हैं, आर्मी के सर्विंग लोग हैं, तो वो अदर देन देयर नॉर्मल ड्यूटीज, जो नॉर्मल ड्यूटीज है वो नहीं आएंगी इसके अंदर. जो नॉर्मल कोई अदर देन देयर नॉर्मल ड्यूटीज, अगर उनको कोई ड्यूटी और असाइन की गई है और उन्होंने बड़ा अच्छे से काम किया, उसके बारे में लिख सकते हैं. सर यस सर आई एम देव. सर जनवरी के मंथ में सर हमारे सर आई स्टेट जबलपुर, तो हमारे मेरे घर से इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 30 किलोमीटर एक विलेज है नोन एज निवास. तो सर मेरा फ्रेंड वहाँ पर टीचर है, तो सर उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया था एज अ गेस्ट, और सर मैं वहाँ एक दिन के लिए, वो ट्राइबल बच्चों का स्कूल था. It's all the students present over there, they all were the tribal students and very poor students. तो सर वहाँ पे मुझे एक दिन का लेक्चर कंडक्ट करना था, और मेरे साथ मेरी छोटी टीम की 2 और लेक्चरर्स की. तो सर उन्होंने मुझे ऐसा मेन करके बोला था, मुझे बोल दिया था आप अपने साथ 2 और लेक्चरर्स को ला सकते हैं, और ये टॉपिक्स होंगे जो करना है. तो सर हम लोगों ने उसको सक्सेसफुली किया, और हमें पर लेक्चरर को 700 उसके मिले थे सर डूइंग दैट. तो मैं इसे मेंशन कर सकता हूँ यहाँ? नहीं, मैं सिर्फ एक बोलूँगा, इसको याद करके यू रियली फील हैप्पी, यू डिड ए गुड जॉब. यस सर. बस सिंपल आंसर विल कम फ्रॉम देयर. यू सी, अगर आप लिखते हो, आपके ऊपर उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे वो, तो हाउ यू फील इनसाइड इज ऑटोमेटिकली विल रिफ्लेक्ट ऑन योर फेस, विल रिफ्लेक्ट इन योर वर्ड्स. सो दैट इज इम्पोर्टेंट. सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखना. इफ यू रियली फील दैट यू डिड ए वेरी गुड जॉब एंड यू फील वेरी हैप्पी by remembering that, must write. Simple. Okay sir. ठीक है. अच्छा, मैं फटाफट इसको 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ. Then I'll give you chance for asking question. ये खत्म होने वाला अभी. Okay, ये हो गया. Treasurer of a society, President, VP, Secretary of a committee, ये examples हैं. कुछ भी. Or any others. Right. लास्ट इज नेचर ऑफ कमीशन. इसमें बच्चे बड़ी गलती करते हैं. एक इतना छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ या तो आपको पीसी लिखना है या एसएससी लिखना है, तीसरी चीज नहीं लिखनी. या पीसी या एसएससी. बच्चे लिखेंगे टाइप ऑफ एंट्री, एफ कैट, टेक एंट्री. दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. यू आर ओनली सपोज टू राइट आइदर पीसी और एसएससी. चॉइस ऑफ सर्विस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बस. कोस्ट गार्ड भी लिख सकते हैं. लाइक सर वी हैव टू राइट पीसी, फिर आगे ब्रैकेट में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स. व्हाट इज इट सर? वी हैव टू राइट लाइक दैट, पीसी फिर ब्रैकेट में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. ना वो अलग से है. चॉइस ऑफ सर्विस नीचे अलग से पूछा गया है. जब पहले नेचर ऑफ कमीशन पूछा गया है, नेचर ऑफ कमीशन एंड चॉइस ऑफ सर्विस. यस, पीसी, देन चॉइस ऑफ सर्विस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. Sir, in the case of FCAT, we have applied for both PC and SSC. आपने अपनी चॉइस क्या, आपकी चॉइस क्या है? Preference is permanent commission. बस you give the preference. Okay. You give your preference. Okay. Next is chances availed. इसका ये पूछ रहा है कि इस आज से पहले एसएसबी कितनी बार गए हो. तो जो बच्चा पहली बार जा रहा है वो तो इसके सामने लिखेगा nil. Those going to SSB for the first time to write nil. और जो मान ली 4 बार जा चुके हैं, they will write 4. जब 4 लिखा है तो वहीं पर ही ब्रैकेट के अंदर लिख दो बेटर 2 SO, दैट मीन्स 2 बार स्क्रीन आउट हुआ, 2 NR. दैट गिव्स दैट मीन्स इट कन्वेज एन इम्प्रेशन कि सर मैं लिख तो 4 रहा हूं पर एक्चुअली तो मुझे 2 ही चांस मिले थे, 2 बार तो स्क्रीन आउट हो गया. एंड लास्टली ये कॉलम नंबर 14 जो है उसमें लिखना है कितनी बार एसएसबी में गए हो. हर एक लाइन एक बार के लिए. टेबल विल कंटेन एज मेनी लाइंस एज द नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव अगेंस्ट 13 अबव. हर एक लाइन में यू विल गिव डिटेल्स ऑफ ईच टाइम यू हैव गॉन टू एसएसबी. अगर डेट वेट याद नहीं है तो खाली मंथ एंड ईयर लिख दो, एनफ. If you don't remember the date, just write the month and the year. और आगे चेस्ट नंबर, बैच नंबर, कहता है सर 10 बार गया हूँ तो कितनी बार याद रखूंगा. तो डोंट रिमेम्बर, राइट? जस्ट डोंट रिमेम्बर और अनेबल टू रिकॉल. इफ यू डोंट रिमेम्बर जस्ट राइट अनेबल टू रिकॉल और डू नॉट रिमेम्बर.
no problem. Okay, that's it. Now I am just stopping sharing and I will be asking you for yes, bolo, any सर question? Yes. सर सर हॉबी अगर अभी से परस्यू करना शुरू किया और 2 महीने बाद एसएसबी है तो वो चलेगा वहां पे बताया चलेगा तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल चलेगा। और एक और सर अगर ये जो ये डब्ल्यूएटी से रिलेटेड सवाल है सर, डब्ल्यूएटी में अगर वर्ड का मीनिंग नहीं मालूम है तो उसके सामने मीनिंग नॉट नोन ऐसा लिखना जरूरी है क्या? लिख दो, क्योंकि अगर जब मीनिंग नहीं मालूम है तो क्या फिर उल्टा सीधा लिख दोगे कुछ भी, तो लिखो मीनिंग नॉट नोन। बट टू बी ओपन स्ट्रेट फॉरवर्ड, सर इसका मीनिंग ही नहीं पता तो एसोसिएशन क्या करूंगा, खाक बिल्कुल ही गलत, इट विल कन्वे रॉन्ग इंप्रेशन इफ यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड, तो राइट मीनिंग नॉट नोन, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। सर पहला तो मेरा क्वेश्चन यही था कि मैं अब से पहले 9 बार गया हूँ एसएसबी में, तो सभी की मेरे को डिटेल याद नहीं थी क्योंकि अराउंड 2012-13 से स्टार्ट हुआ था, तो वो वाला तो आंसर मिल गया। अगर सभी की डिटेल नहीं पता है तो मैं बता दूंगा, लेकिन सर उसका ऑर्डर तो आगे पीछे हो सकता है ना सर, तो उससे कोई ज्यादा इशू तो नहीं आएगा ना सर? कैसे कैसे फोल्डर क्या आगे पीछे मतलब? ऑर्डर इन द सेंस बीच में सर कोस्ट गार्ड की आ गई, कभी एनसीसी स्पेशल एंट्री की होगी, कभी 10+2 टेक वाली होगी, इस तरह की। नहीं नहीं, वो तो लिखने की जरूरत नहीं है वहां पर, वो कहाँ मांग रहे हैं, दे आर नॉट आस्किंग। डिटेल में सर पहले सीरियल नंबर फिर टाइप ऑफ एंट्री, तो टाइप ऑफ एंट्री में लिखना पड़ेगा सर कि कौन सी एंट्री थी। अच्छा वो कोई बात नहीं, डजंट मैटर, माइनर थिंग्स। ओके सर, वेरी 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 माइनर थिंग्स, वेरी थिंग। ओके ओके, और बोलो एनीथिंग। सर ये जैसे अभी भैया ने बोला कि कोस्ट गार्ड की एंट्री पर, सर कोस्ट गार्ड तो वो उसमें आता है सर होम मिनिस्ट्री के अंदर, तो सर उसकी एंट्री यहाँ पर अभी उनका एसएसबी इन्हीं के साथ में होता है, दैट इज द रीजन। अभी उनका एसएसबी सिलेक्शन सेंटर अलग से नहीं है। ओके सर, ठीक है, तो okay, if there are no further questions then we call Sir, it. I have a question. Sir, like, sir, interest is something in which we want to do but we are not getting for time there. Is that? हाँ बिल्कुल, interest is something that you want to pursue but you are not getting time. Okay. अभी मैं आपसे जो चूंकि मैंने आपको रिमाइंड नहीं करना, आपने एसडी लिखा, एसडी लिख के आपने मुझे भेजना है इफ यू वांट यू नो माय सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। और मैं जनरली एक दिन के अंदर मैं आई टेक टाइम, क्योंकि मुझे पूरा ध्यान से पढ़ना पड़ता है, फिर मैं इंडिविजुअली फीडबैक आपको देता हूँ। तो और अगर बहुत ज़्यादा लेट भेजोगे, मान लीजिए आप मुझे अभी ये कोर्स भी खत्म हो गया और फिर महीने बाद भेजो, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी इट माइट गेट लॉस्ट। तो अगर इफ यू वांट माय सजेशंस तो जल्दी जल्दी भेजो, so that I can help you and give you my recommendation. And sir, one more thing, sir, like in hobbies or interest column, we have to write separately hobbies dash फिर आगे हमारी hobbies, फिर नीचे interest फिर dash हमारा interest. ना ना, no, ये तो मैं मेंशन किया ना, इकट्ठा whether it is to be considered as a hobby or an interest, leave it to him. ये तुम्हारी श्रद्धा है सर, जो मर्जी कंसीडर करो, इकट्ठा ही लिखना है। Okay. Don't have to separate. Okay sir, thank you sir. तो ओके फिर बस करते हैं भैया, अभी छोड़ते हैं। सर को क्वेश्चन। ओके बाय बाय, देन ऑल द बेस्ट। ओके बाय। One is having some question. हाँ बोलो, चलो लास्ट क्वेश्चन। Okay sir, so I'm Dev. So my question is, I am writing my story of life, so which Yudhvir sir tell us to do. सर उन्होंने बोला जब से कॉन्शियसनेस आ गई है तब से उसको रिकॉल करना शुरू करो। सर मैं बोल रहा था कि स्टोरी ऑफ लाइफ में हम हर वो चीज लिखेंगे जिस वजह से हम ऐसे हैं, राइट? The story of life और शायद SD they may not be 100% exactly same, but yes, by and large तो वो सही है। आपको ज्यादा जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। एक तो पहले आपको टाइम भी बहुत कम मिलेगा, 15 मिनट का टाइम मिलता है, तो जो आपको स्ट्रक्चर दिया है उसी के अंदर लिखना है। तो वेल
what are the influences which have made you the type of person that you are, वो जरूरत नहीं है, वो जस्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है. जो जैसा एसडी में जो कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, जो जिस इवेंट को उसको आपने कैसे हैंडल किया, कैसे कोप अप किया, इट कैन बी ए नेगेटिव इवेंट, इट कैन बी इवन ए पॉजिटिव इवेंट, जिसने आपके ऊपर एक अमिट प्रभाव छोड़ा, और उनको भी बहुत ब्रीफली एक डेडेड लाइन लिखनी है, क्योंकि टोटल कंटेंट जो है वो 15-20 मिनट के अंदर पूरा होना चाहिए. वो दैट आल्सो विल डिपेंड अपॉन योर राइटिंग स्पीड. तो एक अच्छा तेज लिखने वाला बच्चा तीन पेज में लिख सकता है. Yes, sir. So okay, I'll now I think expect you to write. जब भी आप पहला ड्राफ्ट लिखेंगे तो फिर उसके बाद में और उसके ऊपर बात आएगी. Then only I'll be able to give you more specific suggestions and recommendations. Okay, sir. ठीक है? Okay, bye for now. Thank you so much, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Good night, sir.